Hi friends, welcome to my YouTube channel Bamoj Biogenius. The today's topic is ribosomes. We know that this is from 11th NCERT biology book, that is 8.5.6. Now see why ribosomes are so important. Although the ribosomes are very small, tiny particle-like organelles that are present in the cytoplasm of prokaryotic as well as a eukaryotic cell, but these are very important because of the function they performs. The function of these ribosomes is protein synthesis. Now, first of all, we will see that why ribosomes are considered as a organelle. That is because if organelle means what? Organelle means a particular kind of a component of a cell which performs a specific function that is called as a organelle. So ribosome is also performs a specific type of function that is called as a protein synthesis, and that's why ribosomes are very important because 60% of the we can say the our body is made up of a protein. So whatever the protein that our body synthesizes, that is with the help of these ribosomes. So this is true with the multicellular animals as well as it is true with the single celled animals also. So that's why ribosomes are very important. Now over the years, because of this property of these ribosomes for synthesizing particular kinds of protein, it is also a favorite drug target for pharmacists. क्यों? तो इसका रीज़न है कि राइबोसोम्स को अगर अपन ब्लॉक कर सकते हैं तो अपन वो सेल का प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर सकते हैं। अब सेल का प्रोटीन सिंथेसिस क्यों ब्लॉक करेंगे? क्योंकि अगर कोई एक आधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने को बीमार बनाता है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर मारना है तो सिंपल सा है कि उसके राइबोसोम्स के ऊपर अटैक करो, उसके राइबोसोम्स को ब्लॉक करो और वो ऑर्गेनिजम्स का प्रोटीन सिंथेसिस खत्म करो, वो ऑर्गेनिजम्स मर जाएगा तो अपन बच जाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज यूज्ड इन अ various kinds of antibiotics which are derived from the fungi, but these antibiotics are used to block the ribosomes of microorganisms. उसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्लोरामफेनिकॉल. You must have heard about the chloramphenicol. This is a particular kind of antibiotic that is used against the typhoid, against the cholera. It is also used against the meningitis, or it is also used against the simplest conjunctivitis. उसको बोलते हैं आँख आना. So this conjunctivitis, that is also a kind of a bacterial disease, and that can be cured with the help of this chloramphenicol. So that is how we know that there should be, or there is a inhibition of a protein synthesis that can be done with the help of ribosomes. So that's why these ribosomes are very important. अब आप बोलेंगे कि भाई राइबोसोम्स तो यूकेरेटिक सेल्स में भी रहते हैं, तो वो अब जब अपन ये ऐसा क्लोरोफेनिकॉल जैसा कोई भी एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो वो अपने राइबोसोम्स को भी मारेगा या अपने राइबोसोम्स को भी अफेक्ट करेगा और ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस अपना भी ब्लॉक करेगा। पर ये ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया का राइबोसोम जो रहता है वो अलग है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और अपना जो राइबोसोम है वो अलग है, उसको बोलते हैं यूकेरियोटिक राइबोसोम, और दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। और दोनों का स्ट्रक्चर अलग रहने से क्या होता कि ये क्लोरामफेनिकॉल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल राइबोसोम्स के ऊपर ही अटैक करता है, उनको ब्लॉक करता है, वो अपने जैसा यूकेरियोटिक राइबोसोम्स को अफेक्ट नहीं करता है। So that is the importance. That is the specificity of antibiotics for a particular kind of a ribosome, special kind of ribosomes that are
प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इटसेल्फ। अब आप बोलेंगे कि बैक्टीरिया के जैसा राइबोसोम तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम रहता है वो वेल प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है। तो double membrane bound structure is present, or we can say the double membrane bound structure of a plasma membrane prevents these antibiotics to enter inside the mitochondria, and these mitochondria, the ribosomes of the mitochondria, or we can say mitoribosomes, they are um, not affected by the um, antibiotic. Another aspect of ribosomes importance is that tree of life. We know that ribosomes are present right from the prokaryote up to the eukaryotes. So that means these ribosome molecules are preserved from the ages. मतलब जब सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बना होगा तो उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ होगा और उसमें भी राइबोसोम होगा। तो इसका मतलब ये है कि राइबोसोम्स जो है वो बहुत सालों से, हजारों बिलियन ईयर्स, जब से लाइफ स्टार्ट हुई, कब लाइफ स्टार्ट हुई, 3.5 बिलियन ईयर आगो, तो सब तब से ये मॉलिक्यूल जो राइबोसोम है वो अपने एटमॉस्फेयर में है या अपने बॉडी में या लिविंग सेल्स में है। तो ये राइबोसोम्स अपने को उसके बारे में भी बता सकते हैं, इवोल्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं कि कैसे ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हो गई। और अगर अपन राइबोसोम्स की अच्छे से स्टडी करेंगे, राइबोसोम्स का जो राइबोसोमल आरएनए है उसके सीक्वेंस की अगर स्टडी करेंगे, तो आपको आपको अपने को पता चल सकता है कि हाउ लाइफ इवॉल्व एंड हाउ the diversity of life is created in the universe. So that is what we call it as a tree of life. So uh, the वो ट्री ऑफ लाइफ को समझने के लिए राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में आता है कि मॉलिक्यूलर टाइम मशीन। राइबोसोम्स आर लाइक अ मॉलिक्यूलर टाइम मशीन। अपने को जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 3.5 बिलियन years ago the life started, and with the starting of the life, that means at that time also the microorganisms are producing proteins, and these proteins are produced with the help of ribosomes. So whatever the changes that happened during the evolution of life on the earth, in the universe, that changes are coded, that changes are present in the ribosome. So it is a kind of it is just like a molecular time machine. So we can study that particular variations in a ribosome from different types of organisms, and we can study that how this particular changes brought about the evolution of life on the earth. So that is the importance of ribosomes. Now we will talk about the history of a ribosome. First of all, we will discuss about how this name came into being. That is ribosome. Ribose nucleic acid containing body, or ribose sugar containing body. That's why the name is ribosome. Now, when we talk about the history, it goes back to 1941, where this scientist Claude, he, with the help of a kind of a technique that is known as a cell fractionation technique, he got the microsomes, and these he found that these microsomes are having ribonucleoproteins. So he found that, or he named it as a microsomes. So after that, in 1953, similar type of a material or a similar type of a microsomes are also observed in a plant cells by Robinson and Brown in 1953. फिर बाद में जॉर्ज एमिल पैलाडे, इन्होंने 1953 में एक नई टेक्निक
ढूंढ के निकाली थी, उसको बोलते थे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। और विद वो काम करते थे प्रोटीन्स के ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन में से प्रोटीन कैसे बाहर निकालना, कैसे अलग करना। और इसी टेक्निक के साथ में इन्होंने माइक्रोसोम्स को भी वो टेक्निक यूज की माइक्रोसोम्स के ऊपर, और उन्होंने ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स अलग किए, और उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तब उनको पता चला कि these are the ribonuclear particles, these are a special kind of a particles, and they are very important for protein synthesis, and uh, that's why he gave the name as a Pallades particle. Now इसके बाद में रॉबर्ट बी ब्राउन नाम के बायोकेमिस्ट थे, वो एक अपना एक संगोष्ठी में अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे थे। वो पेपर का नाम था माइक्रोसोम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन 1958। तो वो पेपर में उन्होंने सबसे पहले ये इसको नाम दिया पैलाडिस पार्टिकल्स को एज अ राइबोसोम्स। So this is about the history of a ribosome. But now we will discuss about the physical and chemical properties of ribosomes. When we talk about the size of the ribosomes, the size of the ribosomes is very small. It is about the size of 15 nanometer to 25 nanometer. In prokaryotes, the size is very small as compared to eukaryotes. In case of eukaryotes, the size starts from the 25 nanometer, uh, like that. So when we talk about the structure, it's just like a granules, or it's just like a particles. So that's why the name was given as a Pallades particle. So its a structure is a granular and not bound by membrane. So this is the physical feature of the ribosome. Then chemical composition, if we see chemical composition of ribosomes, the ribosomes are made up of ribonucleoproteins, or we can say the ribonucleic acid or RNA, and that RNA is for ribosomal type. So that's why it is called as a ribosomal RNA or rRNA. And protein. So the portion of RNA and protein is nearly 50-50% in the ribosomes. Now again, the ribosomes are in the form of dimers. Di means two. Dimers means two separate subunits. They attach with each other to form a compact large molecule. So these two subunits are not similar in size. One is large and another is a small. So here you can see here, this is a large subunit and this one is a small subunit. So this is about the ribosomes. If we want to see the ribosomes in a cell, you will see that some of the ribosomes, they are suspended in a cytoplasm, and some of the ribosomes, they are attached with the endoplasmic reticle. So the position of ribosomes is like that. Some are freely suspended in the cytoplasm, and some are present in the or they are present or attached to the membrane of the endoplasmic reticulum. So ER bound ribosomes. So that is we can say the ribosomes. Then occurrence. So ribosomes are present in each and every type of a cell, right from the prokaryotes up to the eukaryotes. But in some cases, exceptions are there. For example, in case of a mature RBCs or in case of a sperm, the ribosomes are absent. Now, why these ribosomes are absent in RBCs and sperms? Because they don't take part in these cells, they don't take part in protein synthesis. So there is no necessity of a ribosome. So mature RBCs and sperms, uh, they don't have the ribosomes, but they are most abundant in dividing cells. For example, in ovum, the ribosomes are much
more as compared to the normal cells. So the cells which are dividing, for example, the cells of the meristematic tissue in plants. So in such a type of dividing cells, if, cells of the zygote, in such a cells you will find the ribosomes, because these in these type of cells the protein is required, and that's why for protein synthesis, or we can say for a protein synthesis, the ribosomes are required in large quantity, and that's why they are most abundant in dividing cells. Then I have already told you about the um, different ribosomes. For example, in case of prokaryotes, there is a one type of ribosome that is called as a 70S ribosome, and in case of a eukaryotic cell, the ribosome is called as a 80S ribosome. Now, uh, what is the S, that we will discuss later. बाद में देखेंगे उसको. Composition of ribosomes देखो कि 70S ribosome is made up of two subunits, that is called as a 50S subunit and 30S subunit. So the larger subunit is called as a 50S and smaller subunit is called as a 30S. दोनों मिला के वो 70S राइबोसोम बनता है. तो अब 50 और 30 कर दिए उसको तो 80 हो गया, पर ऐसा नहीं होता. वो एक दूसरे के अंदर जो छोटा जो राइबोसोम है, जो सब यूनिट है, वो बड़े लार्ज सब यूनिट के अंदर समा जाता है थोड़ा सा, इसीलिए उसका जो एस वैल्यू है वो कम आती है. सो इट बिकम्स 70S. Then ATS ribosomes. ATS ribosome again they have two subunits. Large subunit is called as a 60S and small subunit is called as a 40S. यहाँ पे भी वही सेम कि 60S जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि 60S और 40S मिला के 100 होता है, पर यहाँ पे वैसे नहीं है, 80S बनता है, क्योंकि 40S 60S के अंदर थोड़ा सा समा जाता है, तो इसकी यस वैल्यू जो है वो कम आती है. Now what is this S? Whenever we refer a ribosome, we use the term S, that is 70S ribosome or 80S ribosome. Now what is this S? S stands for a Swedberg unit. बहुत से लोग इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, पर वो गलत है. S मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट, और S जो नाम दिया गया वो स्वेडबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे, थियोडोर स्वेडबर्ग, उनके ऑनर में दिया गया है, नाम है. सो दैट इज S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट. इन्होंने क्या किया था, थियोडोर स्वेडबर्ग ने एक नई टेक्निक इजाद की थी, उसका नाम था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. और इस वो काम करते थे कोलाइडल प्रोटीन्स और कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ में, और उसमें से जो प्रोटीन है वो बाहर निकालते थे. तो प्रोटीन बहुत साइज में बहुत छोटा होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज they have developed a technique that it can separate the protein particles from the solvent or any kind of a solution. So same thing is applied here. उन्होंने क्या किया कि राइबोसोम्स को साइटोप्लाज्म में से सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का यूज किया. और उन्होंने अब इसमें क्या करते हैं, तो उसमें ये करते हैं कि वो एक एपेंड ऑफ टाइप ट्यूब रहती है, जैसा टेस्ट ट्यूब रहती है. टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्यूशन डाल दिया और उसको अगर घुमाए तो क्या हो जाता है कि जिसकी डेंसिटी जो हेवी पार्टिकल रहता है वो सेटल होता है बेस में वो टेस्ट ट्यूब के. तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उसका ये होता है कि कोई भी चीज़ को तुम अगर पर मिनट 100,000 टाइम्स अगर घुमाएंगे, तो उसका जो स्पीड है उसके ऊपर से उसको नाम दिया है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. जनरली सेंट्रीफ्यूज होता है तो सेंट्रीफ्यूज का आरपीएम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक रहता है, पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट बहुत ज़्यादा रहता है. सो यहाँ पे देखो कि ये ऐसा इस प्रकार ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और इसमें ये ऐसी वेल रहती है, और इस वेल में ये ऐसे सॉकेट्स रहते हैं. ये सॉकेट्स में आपको दिखेंगे कि यहाँ पे
जो टेस्ट ट्यूब है वो रखने के लिए जगह है। तो जब ये टेस्ट ट्यूब रख के उसका जो ढक्कन है वो बंद किया जाता है, तब ये अंदर बटन चालू करने के बाद में वो बहुत जम के गोल घूमता है। तो ये गोल घूमने से क्या हो जाता है कि सॉल्यूशन में का जो हेवी पार्टिकल्स है वो सेटल्स डाउन इन अ test tube at the base of the test tube, so at the bottom of the test tube. So this is how different cellular parts can be separated from the colloidal solution or a cytoplasm. So यहाँ पे राइबोसोम सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। सो इसका जो रेट है वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जिसको बोलते हैं, कि वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड रहता है कि वो पार्टिकल्स की डेंसिटी के ऊपर और साइज के ऊपर। अब डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो जल्दी सेटल होगा, डेंसिटी अगर कम होगी तो वो लेट सेटल होगा। तो उसका रेशियो निकालते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर से ये 50, 30, 60, 40 ऐसी साइज ठहराते हैं। तो वो साइज मतलब उसका जो डायमेंशन है, जो भी है, जो यूनिट है वो ठहराते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। सो अगर आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स रहते हैं वो 2.4 इंटू 10⁻⁶ उनका मोलिकुलर वेट रहता है। और अगर तुम यूकैरियोट्स में देखेंगे तो इनका जो ये रहता है मोलिकुलर वेट, वो 20 गुना ज़्यादा रहता है। सो दे आर more heavier than the prokaryotic ribosome. So 20 into 10 raised to the power 6, we can say that. Sorry, 40 into 10 raised to the power 6 उनका molecular weight रहता है यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स का। So this is how the difference is there. So this is all about the S, that is S stands for Swedberg unit. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आके गया है कि S stands for what. सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट नहीं देना है, उसको लिखना है स्वेडबर्ग यूनिट। अब इसके आगे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस नीट एग्जाम में या सिमिलर एग्जाम्स में आके गए हैं राइबोसोम्स के ऊपर। देखिए, राइबोसोम्स आर, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश डैश। ये 2002 का क्वेश्चन है, पीएमटी में पूछा गया कि अब ये आप पूछेंगे 8.5.6 राइबो 13 ये क्या है, तो इसको इसको छोड़ो, ये मेरे लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश 2002। ए है न्यूक्लियोलस, बी है साइटोप्लाज्म, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है गोल्गी बॉडी। तो राइबोसोम्स जो तैयार होते हैं वो न्यूक्लियोलस में होते हैं। सो वहाँ पे एक रीजन रहता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। सो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो रहता है वो न्यूक्लियोलस में रहता है, तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स तैयार होते हैं। आंसर है ए। देन सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये BHU 2008 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, तो और सेकंड में राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। थर्ड है 70S राइबोसोम अकर इन प्रोकैरियोट्स। और फोर है राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ स्टेटमेंट तो पक्का ही पक्का करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है कि राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड। मैंने आपको पहले ही कहा था कि राइबोसोम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ है, तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरा ऐसा बोलना चाहिए, पर यहाँ पे लिखा है नॉट, तो फोर तो गया। फिर 70S राइबोसोम अकर इन प्रोकैरियोट्स, तो ये भी बराबर है क्योंकि अपन ने देखा कि 70S राइबोसोम्स जो रहते हैं वो प्रोकैरियोट्स में रहते हैं, 80S जो रहते हैं वो यूकैरियोट्स में रहते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। फिर राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, तो अपन ने कभी नाम ही नहीं लिया फॉस्फोलिपिड्स का और ओलिगोसैकेराइड्स का, अपन ने नाम लिया राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी क्या है, तो आरएनए और प्रोटीन, तो इसमें फॉस्फोलिपिड तो आया ही नहीं कहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट गया।
अब रह गया माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए ऑलरेडी रहता ही है, क्योंकि अपने को मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का एक सर्कुलर डीएनए रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो पहला और थर्ड कौन सा है? डी। तो आंसर है इसका डी। ठीक है। फिर आया राइबोसोम्स आर ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ डैश। 2009 का क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है आर आर एन ए एंड टी आर एन ए। दूसरा ऑप्शन है एम आर एन ए एंड टी आर एन ए। थर्ड है आर आर एन ए एंड प्रोटीन्स एंड फोर्थ है एम आर एन ए एंड प्रोटीन्स। तो हमने पहले ही देखा है कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, सो राइबोसोमल आर एन ए एंड प्रोटीन, तो उसका आंसर आएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है type of ribosome found in prokaryotes is that is केरला सीईटी का 2011 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 100s, बी है 80s, सी है 60s और डी है 70s। तो अपने को पता है कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम कैसे रहते हैं? 70s। तो आंसर रहेगा डी। देन व्हाट इज ट्रू ऑफ राइबोसोम, ये क्वेश्चन है 2012 का, पीएमटी में पूछा गया है। ए ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो दोनों चीज़ें गलत है इसमें। एक तो प्रोकैरियोट्स में 80s राइबोसोम नहीं रहता है, वो रहता है 70s। और एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट रहता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट नहीं रहता है। तो एक स्टेटमेंट तो गलत है। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। फिर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, तो राइबोसोम्स तो दोनों में रहते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो सी स्टेटमेंट गया। फिर दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनए, ये भी गलत है। तो आंसर आया बी, दैट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। सो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ये अपन ने देखा। Then smallest cell organelle discovered by Pallady in 1953 is dash dash। 2014 का क्वेश्चन है, अपने को सबको मालूम है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, स्पिरोसोम एंड डिक्टियोसोम में राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्गेनेल की साइज क्या है। जैसा 10 नैनोमीटर की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहती है, और इसकी साइज कितनी है? 250 नैनोमीटर, सॉरी 25 नैनोमीटर। तो लगभग उसके जो विड्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उतने विड्थ का ये राइबोसोम, उस थोड़ा सा उससे थोड़ा ज़्यादा राइबोसोम रहता है। सो दिस इज द आंसर इज बी, राइबोसोम। Then absence of ribosomes from a cell suggests that the cell is dash. A. Not performing respiration. B. Not performing photosynthesis. C. Not synthesizing protein. एंड डी एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन डाइजेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब्सेंस ऑफ राइबोसोम मीन्स क्या है, कि वो सेल को प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर सीधा है सी, नॉट सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। इसका आंसर है सी। Thank you for patient hearing. Please subscribe to my YouTube channel Bamuj Biogenius for latest upload, or like my videos and comment. Thank you.